Hello students, let's talk about today a very important topic of the chapter Establishment of Company Rule in India. The topic is Carnatic Wars. What were Carnatic Wars? See, the Carnatic Wars were a series of military conflict that started in India in the middle of the 18th century. Between whom? Between the two European companies, French East India Company and the British East India Company, including numerous nominally independent rulers. Some local rulers were also involved in the conflict. Three Carnatic wars had taken place. First Carnatic War, see on the left side. Second Carnatic War, third Carnatic War. First Carnatic War from 1746 to 48. Second Carnatic War 1749 to 54, and third Carnatic War 1756 to 1763. What were the reason behind the Carnatic War? The principal reason was that both the European companies, British and French, wanted to establish their monopoly over trade in India. They wanted to have their only presence in India as a traders. Okay, that's why the European companies, they did not like the existence or the presence of other European companies. Okay, there was a great mutual rivalries between these two companies because the trade was very profitable with India, and therefore the European company did not want any competition with any other company. So they always look for an opportunity to eliminate each other. So such Carnatic War was also the result of such thinking and such perception of the European companies. See, what was the first Carnatic War? The first Carnatic War was the result of the Austrian War of Succession. यूरोप में एक लड़ाई चल रही थी, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, जिसके बारे में अभी आपको जानना नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि दैट ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन was started, has taken place between England and France. As a result of which we find that the companies of both these two countries also started at war with each other in India. How? See, in 1745, the British East India Company did an attack on the French fleet. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी फ्लीट पे हमला कर दिया, एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर. नाउ इन रिटर्न, इन सितंबर 1746, द फ्रेंच कंपनी कैप्चर्ड मद्रास. यू नो मद्रास, in Madras there was a factory of English company which was known as the factory of St. George. In fact, in Carnatic kingdom was very important for both the French and English East India Company, because in Carnatic we find the French also had their factory at Pondicherry and Karaikal, and English had their factory at Madras and Cuddalore. फैक्ट्री क्या होता है? देखिए, फैक्ट्री होता है एक बिल्डिंग होता है जो यूरोपियन कंपनीज लोग लोकल रूलर्स की परमिशन से एक ज़मीन लेते हैं और ज़मीन में एक बिल्डिंग बनाते हैं जो जिनका नाम ये लोग देते हैं फैक्ट्री, और वहाँ पे ये लोग गोडाउन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, अपनी चीज़ों को स्टोर करते हैं. वहाँ पे उनका ऑफिस होता है, वहाँ पे उन लोग का रेसिडेंशियल रूम्स होता है जहाँ पे वो लोग ठहरते हैं. ठीक है, जो यूरोपियन कंपनीज़ के जो ट्रेडर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो लोग तो गोडाउन, ऑफिस है ना, और लिविंग रूम्स वहाँ पे होते हैं जहाँ पे वो लोग रिसाइड करते हैं, ठहरते हैं. तो फैक्ट्री कई जगहों पे दीज यूरोपियन कंपनीज हैड एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इन मेनी पार्ट्स, okay, in our country. But Carnatic was very important because in Carnatic both these two European companies had their very important factory. The French at Pondicherry and Karaikal, you can see in the map also the right side, okay, you will see the location of Karaikal and Pondicherry, and the English had their factory at Madras and Cuddalore. Now, so when the French company captured the factory of Madras, the British appealed the Nawab of Carnatic, Anwaruddin Khan, for help. उस समय at that time the Nawab of Carnatic was Anwaruddin. Okay, Nawab Anwaruddin requested the French to return back Madras to English East India Company, but French India Company did not follow it. As a result, Nawab of Carnatic
डिक्लेयर वार अगेंस्ट द फ्रेंच। ठीक है, नवाब अनवरुद्दीन ने फ्रांसीसियों के खिलाफ युद्ध कर दिया, लेकिन नवाब बुरी तरह से हारा। द फ्रेंच बैडली डिफीटेड द नवाब फोर्सेस इन द बैटल ऑफ अदियार। ठीक है, एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ अदियार, है ना, वेयर द फ्रेंच बैडली डिफीटेड द नवाब फोर्सेस। दिस बैटल इज ऑल्सो नोन एज द बैटल ऑफ सेंट थोम। Finally, this war was ended in 1748 and the French returned Madras to English. Now, the first Carnatic War showed that the French showed we can say that the superiority of French over the English at that time. Okay. Now, see, the second Carnatic War just started after 1 year of the end of first Carnatic War between 1749 to 54. The causes of the second Carnatic War were the disputed succession at Hyderabad and Carnatic. Okay, there was a dispute for succession was going on in Hyderabad and Carnatic, and both these two companies, they involved in this matter and they conflicted with each other. See the background. War of succession started after the death of the first नवाब of हैदराबाद। हैदराबाद का जो पहला नवाब था, जिसको निज़ाम, हैदराबाद के नवाब को एक्चुअली में निज़ाम कहते हैं। तो हैदराबाद का जो पहला निज़ाम था, उनका नाम था चिनक्लिच खान। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज निज़ामुल मुल्क। ठीक है, निज़ामुल मुल्क उनका नाम था। 1748 में उनका डेथ हो गया, निज़ामुल मुल्क का, और उनके मरने के बाद उनका बेटा नासिर जंग, देखिए मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, नासिर जंग उनका एक बेटा, और निज़ामुल मुल्क की एक बेटी थी खैरुन्निसा। खैरुन्निसा का बेटा मुजफ्फर जंग, दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, क्योंकि दोनों चाहते थे कि हैदराबाद का निज़ाम हम बने। तो आफ्टर द डेथ ऑफ द फर्स्ट निज़ाम ऑफ हैदराबाद इन 1748 देयर अरोज अ वार ऑफ सक्सेशन बिटवीन द सन निज़ामुल मुल्क and the grandson Muzaffar Jung. Okay. Now, similarly in Carnatic also there was a dispute between Chanda Sahib and Nawab Anwaruddin. चंदा साहिब और नवाब अनवरुद्दीन के बीच में भी डिस्प्यूट चल रहा था कि चंदा साहिब जो थे वो खुद चाहते थे कि हम कर्नाटक का नवाब बने। चंदा साहिब कौन थे पता है आपको? कर्नाटक के एक नवाब थे दोस्त अली। अनवरुद्दीन खान से पहले कर्नाटक के नवाब थे दोस्त अली, उसी के दामाद सन इन लॉ थे चंदा साहिब। ठीक है, तो चंदा साहिब क्लेम करते थे कि दोस्त अली के बाद जो है मुझे नवाब बनना चाहिए, लेकिन अनवरुद्दीन ने ज़बरदस्ती, अनवरुद्दीन खान खुद नवाब बन गया। तो चंदा साहिब हिमसेल्फ वांटेड टू बिकम द नवाब ऑफ कर्नाटक। नाउ व्हाट हैपेंड? सी, चंदा साहिब मेड एन अलायंस विथ फ्रेंच and similarly Muzaffar Jung also made an alliance with French. So there took place the formation of a team comprising French, मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहिब। एक टीम बनाया गया, फ्रांसीसियों ने एक टीम बनाया जिसमें चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग दोनों थे। एंड दिस टीम इन 1749 द फ्रेंच विद द हेल्प ऑफ चंदा साहिब एंड मुजफ्फर जंग किल्ड नवाब अनवरुद्दीन। ओके, दिस टीम ऑफ फ्रेंच, चंदा साहिब एंड मुजफ्फर जंग, they killed Nawab Anwaruddin in the battle of Ambur. Remember, this battle was known as the battle of Ambur. And the son of Nawab Anwaruddin, Muhammad Ali, fled to Trichinopoly. Trichinopoly is a place in near Madras. तो मद्रास वो भाग गया, वो त्रिचिनोपोली भाग गया अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली। In this way, after the death of Nawab Anwaruddin, we find Chanda Sahib. He became the new Nawab of Carnatic. And what he did after becoming the Nawab, he rewarded to the French with grant of 80 villages around Pondicherry. पौंडीचेरी के आसपास 80 गांव गिफ्ट में दे दिया चंदा साहब ने खुशी से फ्रांसीसियों को, क्योंकि उन्हीं की मदद से चंदा साहब कर्नाटक का नवाब बना था। ठीक है, उसके बाद हैदराबाद में भी फ्रांसीसी सक्सेसफुल हुए, नासिर जंग को मार दिया गया, है ना। और मुजफ्फर जंग वाज ही बिकेम द न्यू निज़ाम ऑफ हैदराबाद विद द हेल्प ऑफ द फ्रेंच। और मुजफ्फर जंग ने भी जो है ना, कहते हैं कि उन्होंने भी काफ़ी गिफ्ट दिया फ्रांसीसियों को, है ना, इन ल्यू ऑफ बिकमिंग द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। इन दिस वे वी फाइंड दैट इन द बिगनिंग द फ्रेंच वर सक्सेसफुल, ओके, इन सिक्योरिंग द थ्रोन ऑफ निज़ाम एंड हैदराबाद फॉर हिज अलाइज। अपने अलाइज के लिए उसने दोनों कर्नाटक और हैदराबाद दोनों की गद्दी हासिल कर लिया। ठीक है, तो चंदा साहिब भी बन गया नवाब कर्नाटक का, और मुजफ्फर जंग भी बन गया विद द हेल्प ऑफ द फ्रेंच। अब यहाँ पे अंग्रेज कहाँ थे?
अंग्रेज क्या कर रहे थे, चुपचाप बैठे हुए थे क्या अंग्रेज? जाहिर सी बात है अंग्रेजों को तो बड़ा बुरा लग रहा होगा कि फ्रांसीसी लोग जीत रहे थे, फर्स्ट कर्नाटिक वार में भी जीते, सेकंड में भी जीत जाएंगे। लेकिन अंग्रेज यहाँ पे, है ना, यहाँ देखिए, द इंग्लिश डिड नॉट रिमेन साइलेंट एक्सपेक्टेटर्स, शांत नहीं बैठे थे अंग्रेज, सारी चीज़ों पे नज़र थी अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने डिसाइड किया टू सपोर्ट एंड हेल्प मोहम्मद अली द सन ऑफ नवाब अनवरुद्दीन। अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि मोहम्मद अली को हम लोग हेल्प करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, इन 1750 द इंग्लिश अंडर रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेजों के उस समय एक नए कमांडर आए थे जिनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, ही वॉज द गवर्नर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो। इन 1750 द इंग्लिश अंडर रॉबर्ट क्लाइव दे अटैक अरकोट, अरकोट पे हमला कर दिया अंग्रेजों ने, विच वॉज द कैपिटल ऑफ कर्नाटिक, एंड नॉट ओनली दे अटैक अरकोट, दे ऑल्सो ऑक्यूपाइड इट, अरकोट को अपने कब्जे में भी कर लिया। जब ये बात चंदा साहिब और फ्रांसीसी उस समय त्रिचुनोपोली को घेरे हुए थे मोहम्मद अली को पकड़ने के लिए, चंदा साहिब और फ्रांसीसियों को जब पता चला कि कर्नाटक के कैपिटल को अंग्रेजों ने कब्जे में कर लिया, तो उन लोगों ने क्या किया, मोहम्मद अली का घिराव रोक दिया। मतलब मोहम्मद अली का जो लोग घेर के लोग पकड़ना चाह रहे थे मोहम्मद अली को घिराव लोगों ने बंद कर दिया, है ना, और अरकोट और अंग्रेजों से लड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने अरकोट को अपने कब्जे में कर लिया था। बट द फ्रेंच फोर्सेस वेर repeatedly defeated by the English and Chanda Sahib was also captured by the English and he was also killed in a battle. Okay, Chanda Sahib was captured and killed and French forces were defeated. Finally, a treaty was signed in 1754 and both the companies agreed not to interfere in the disputes of the native पावर्स। फाइनली एक एग्रीमेंट हुआ कि 1744 में ट्रीटी साइन हुआ कि दोनों कंपनी ने डिसाइड किया कि हम लोग नेटिव राजाओं के मैटर पे अब इंटरफेयर नहीं करके आपस में लड़ेंगे नहीं हम लोग। लेकिन यहाँ पे सेकंड कर्नाटिक वार में हम लोग साफ देखते हैं कि अंग्रेज को जीत हासिल हुई, है ना, एंड विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश मोहम्मद अली बिकेम द नवाब ऑफ कर्नाटिक। नाउ जस्ट देन आफ्टर फ्यू ईयर्स द थर्ड कर्नाटिक वार वाज अगेन स्टार्टेड एंड इट वाज द रिजल्ट ऑफ द 7 ईयर वार इन यूरोप। यूरोप में जैसे शुरू में हुआ था ना ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन, उसी तरह से 1756 में एक और लड़ाई हुई, 7 ईयर वार, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। देखिए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ना बहुत सारी लड़ाइयाँ, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे यूरोप का, है ना, तो इंग्लैंड और फ्रांस में कई बार लड़ाई हुई है ना। दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं, दोनों एक दूसरे के मतलब कि राइवल एक दूसरे के रहे। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आज कितना टेंशन चलता है, उसी समय एक वक्त में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में टेंशन चलता था। दोनों में कई लड़ाइयाँ हुई, है ना, 100 years wars, then Austrian war of succession, then 7 years wars. Okay, several wars has taken place between England and France. See, in 1756 there started a 7-year war. Okay, and as a result of this war, again we find that both the two companies in India they started fighting with each other. लेकिन इस बार अंग्रेज काफ़ी ताकतवर बन चुके थे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैज बिकम वेरी पावरफुल। ओके, what the English did when the third Carnatic war started, the English attacked and captured one of the most important factory of France in Bengal, that was चंदेर नगर। चंदेर नगर को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया, जहां अंग्रेजों की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, और ये चंदेर नगर कहाँ था, बंगाल में था। ठीक है, 1757 की बात है। फ्रांसीसियों ने पूरी कोशिश की टू गेट बैक चंदेर नगर, बट दे फेल्ड एंड आफ्टर 3 years at a place near Madras there was a place known as वांडीवाश। वहाँ पे एक फाइनल लड़ाई होती है बिटवीन द फ्रेंच एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जहाँ पे जो इंग्लिश के जो जनरल थे उस समय सर आयरकूट, वो बजी जो फ्रांसीसी कमांडर थे उनको हरा देते हैं फाइनली, है ना। और इतनी बुरी तरह से फ्रांसीसी हारते हैं कि पौंडीचेरी को भी अंग्रेज अपने कब्जे में कर लेते हैं। इवन पौंडीचेरी वाज ब्रॉट अंडर द पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो द फ्रेंच लॉस्ट बोथ चंदेर नगर एंड पौंडीचेरी टू द इंग्लिश। That means कि in the third Carnatic war we find that the French were completely routed. The French were completely defeated by the English, and the third Carnatic war has now decided who will be the only European company in India. Finally, in Europe, a treaty was signed which was known as the Treaty of Paris in 1763. यूरोप में एक ट्रीटी साइन हुआ जिसके तहत इंडिया में अंग्रेजों ने दोनों फैक्ट्री रिटर्न कर दिया फ्रांसीसियों को, चंदेर नगर भी रिटर्न कर दिया और पौंडीचेरी भी रिटर्न कर दिया। लेकिन एक अल्टीमेटम भी दे दिया कि अब फ्रांसीसी लोग जो है ना आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। मतलब द फ्रेंच विल नॉट ट्राई टू इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस इन एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, दे शुड रिमेन कन्फाइंड देमसेल्व्स टू पौंडीचेरी एंड चंदेर नगर ओनली। ओके, द फ्रेंच विल नॉट
be allowed to extend their influence in any other part of the country. That means the influence, the power of the French was finally checked by the English East India Company. And now after the Third Carnatic War, we find that the English became the whole and sole power of India. So what were the result of the Carnatic War? The result of the Carnatic Wars was that the final result was that the French influence was doomed forever. French का जो influence था इंडिया में वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था, and Britishers became the only power of India. The Britishers were able to consolidate their foothold in India. And afterwards we find that the English, they became free of their rivals, and thus they set on the road. The Britishers, the English East India Company, now set on the road of conquering the other states of the country. One by one, the English East India Company conquered all the states of India, and they became the political master of our country. They ruled over our country for more than 200 years. So the East India Company, who came to India just as a trader, later on they became the administrator of our country till 1947. Okay, students, so that's all about the Carnatic War. I hope you will get it. You have got the content of this topic properly. Thank you.